Good morning, students. Today we are going to do our sonnet, which is sonnet number 116, written by William Shakespeare. In this sonnet, it is being focused the importance of true love. That true love never changes and it is of a permanent nature. With any alteration or any change, maybe the lovers can change, but the love never changes, as love is eternal and it is permanent, it is changeless, it cannot be changed. So, this is the basic theme behind this sonnet, and this is the sonnet number 116, composed by William Shakespeare. The full title of the sonnet is Let Me Not to the Marriage of True Minds. The, the theme of the sonnet. In this theme, the poet discusses the nature of true love. The theme of the sonnet is the nature of true love, which is being discussed by the poet. He says that true love is the union or fusion of true minds. The poet says that no obstacle is possible in the meeting of true hearts. The poet thinks that true love is permanent and cannot be changed. जो थीम है हमारा आज की सोनेट का वो ये है कि जो ट्रू लव होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो किसी भी ऑल्टरेशन से या कोई भी दिक्कत रुकावट रास्ते में आए तो वो उससे चेंज नहीं होता है. वो उन सब दिक्कतों को पार करते हुए क्या है, आगे बढ़ता ही जाता है. और लव जो है, प्रेम जो है, वो हमेशा रहता है, वो कभी भी ख़त्म या कम नहीं होता है. ठीक है. दिस इज़ द मेन थीम बिहाइंड दिस सोनेट. द सोनेट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609. 1609 में इसको पहली बार क्या है, प्रकाशित किया गया था. तो Shakespeare's sonnets are rich in metaphors and similes. As you all know, metaphors and similes का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है शेक्सपियर के sonnets के अंदर. Marriage of True Minds, जो ये टाइटल ही है, The Marriage of True Minds, is a metaphor. The title itself is a metaphor. The poet compares it to a lighthouse which is ever fixed. The poet compares love to a lighthouse which is ever fixed on the seashore. समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे आपको पता है लाइट हाउस बनाए जाते हैं. तो जिस प्रकार समुद्री किनारे पर लाइट हाउस फिक्स होता है ना, मतलब कोई उसमें दिक्कत आए, कितने ही भारी भयंकर तूफान आए, विपदाएं आए, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. तो उसी तरह से जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो हमेशा क्या है, हमेशा व्याप्त रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है किसी भी दिक्कत के द्वारा. तो the poet calls love an ever-fixed mark. It is not shaken during tempests or storms. This is a symbol of changelessness. Further, the poet compares true love to the pole star. Pole star is the symbol of permanence. तो it is a Shakespearean sonnet, जो हमारा आज का sonnet है. As you all know that sonnets are written in two forms. एक तो होता है Italian form और पेट्रार्कन सोनेट, एंड एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट, और जिसको कि हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं या एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं. इन दोनों के अंदर सोनेट तो होगी 14 लाइंस की ही. सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोएम, लिरिकल पोएम ऑफ 14 लाइंस. बट जो फॉर्म है, जो लिखने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है. एंड इन शेक्सपियरियन सोनेट, जो अभी की हमारी सोनेट है, it has 3 quatrains. फॉर्म क्या रहेगी इसकी, 3 quatrains and a couplet, which makes up to a total of 14 lines. Okay, so the rhyme scheme of the sonnet is A B A B C D C D E F E F G G. Now moving towards the text of the poem, the sonnet. It is a very beautiful sonnet written by William Shakespeare, sonnet number 116. The poem begins with the most famous lines in the history of poetry. Let me not to the marriage of true minds. Here, in the very first line itself, the poet focuses upon that what he is going to discuss throughout the sonnet. He says that, let me not to the marriage of true minds. That I am not interested, or the speaker of the poem, he is not interested in the marriage, in the union, in the fusion of true minds. That when someone is making a union with the other person, with the other half, फ्रॉम हिज ब्रेन, कि भाई बुद्धि का प्रयोग करके जो प्रेम करते हैं या उस तरह की जो शादी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. इन द वेरी फर्स्ट लाइन शेक्सपियर यूजेस मेटाफोर ऑफ मैरिज.
Marriage here is used as a metaphor to compare it to true real love. इसको क्या किया गया है, जो बिल्कुल सच्चा प्रेम है, ट्रू लव है, रियल लव है, उससे कंपेयर किया गया है. He says that there is no reason why two people who truly love should not be together. कि ऐसा कोई कारण हो ही नहीं सकता है, जिस ऐसा कोई भी कारण, कोई भी रीज़न दुनिया में हो ही नहीं सकता है कि भाई जो दो लोग हैं जो आपस में सच्चा प्रेम करते हैं उनको अलग रख सके. देयर इज़ नो रीज़न, देयर कैन नॉट बी एनी रीज़न कि जिसके द्वारा दो जो लोग हैं जो आपस में बहुत प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से दूर रह सके या एक दूसरे से जुदा रह सके. He says that admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds. So he says that nothing should come in between two lovers, चाहे शादी ही क्यों ना हो. Maybe here in the first line itself there is a personal touch of Shakespeare's own life he is giving in this sonnet, कि as that he was married to Anne Hathaway. Shakespeare was married to Anne Hathaway, but he was not happy in his marriage. He was unhappily married to her. So perhaps while stating these lines, while dictating the starting lines of this sonnet, he is referring to his own unhappy marriage, and he is stating his feelings for the young man to whom this sonnet is dedicated, to the young man, that there was no reason, if one is already married, the two people who truly love each other should not be together. That is, marriage is not a barrier for them. कि दो लोग जो सच्चा प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम सर्वोपरि है. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको जुदा रख सके, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो. बेशक अगर वो शादीशुदा भी हैं और मतलब दे आर इन सोसाइटल रिलेशनशिप, इवन देन इफ़ टू पीपल आर इन लव, are in totally love with each other, there is nothing that can keep them in alienation from each other. So marriage is not a barrier for them. In continuation, Shakespeare says that true love conquers all. It conquers all the feelings. It says that if the love changes or if someone tries to remove it and it gets removed, then it is not true love. Nothing can change true love. True love lasts forever. It is permanent. Admit impediments. Impediments means ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें, दिक्कतें जो रास्ते में आती हैं. ठीक है, जब इंसान प्रेम करता है, कोई दो व्यक्ति हैं वो आपस में अगर प्रेम करते हैं तो उनमें दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, बट लव जो है वो परमानेंट होता है एंड वो इन सारी बाधाओं को, सारी दिक्कतों को पार कर जाता है और हमेशा बना रहता है. लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स. कि अगर ऑल्टर मीन्स चेंजेस, दिक्कतें, कि अगर कोई दिक्कत आई, कोई चेंज आया है ना, अगर जो दो प्रेमी हैं, अगर उनमें से किसी एक में कोई चेंज आया या उनकी जो अभी की सिचुएशन है उसमें कोई चेंज आया, उनके वातावरण में कोई चेंज आया और वो अगर बदल जाते हैं, उनका प्रेम अगर बदल जाता है तो वो प्रेम था ही नहीं. दैट वॉज नॉट लव. और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, कि अगर कोई ये चाहे कि हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत डालता है प्रेम में, अगर कोई ये बाहर की कोई चीज़ जिसके द्वारा दिक्कत हो सकती है, कि अगर किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के द्वारा कोई ये चाहे कि भाई ये प्रेम को हम ख़त्म कर दें, और ये उसने चाहा और उसने कोशिश की और वो प्रेम अगर ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स दैट वाज नॉट ट्रू लव, कि वो प्यार तो था ही नहीं. तो इन द क्रक्स शेक्सपियर सेज दैट love is permanent, it is changeless, it cannot be altered, it cannot be removed, it cannot be changed. But if it gets changed, if it gets altered, or if it gets removed, then that was not true love. That was just an infatuation. कि वो प्रेम अगर जो ख़त्म हो जाए बाधाओं के द्वारा, या कोई अगर चाहे कि हम उसको ख़त्म कर दें और वो ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रेम था ही नहीं. ठीक है. तो he then says that, oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. Then he uses a very beautiful metaphor.
for love, and he says that it is an ever fixed mark. Ever fixed mark जो हमेशा रहता है, ever fixed, कभी भी अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, हमेशा वो उसी पोजीशन पे रहता है. दैट लव इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, दैट लव इज़ समथिंग दैट डज नॉट शिफ्ट, चेंज और मूव. इट इज़ लाइक एन एवर फिक्स्ड मार्क, दैट इज़ इट इज़ कॉन्स्टेंट, वो हिलता नहीं है, इट इज़ कॉन्स्टेंट, वो स्थिर रहता है, इट इज़ स्टेबल. एंड इन द सेम प्लेस, वो हमेशा उसी जगह पे, उसी पोजीशन में. जो प्रेम है, सच्चा प्रेम अगर है, तो वो हमेशा ऐसे का ऐसा ही रहता है, ना वो कहीं हिलता है, ना कोई दिक्कत होती है. ठीक है, वो सब दिक्कतों को पार कर जाता है. इट रिमेन्स इन द सेम प्लेस एंड इट कैन वेदर और इट कैन फाइंड इवन ए फाइट इवन मोस्ट ड्रेडफुल टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट मीन्स स्टॉर्म. स्टॉर्म तूफान, बहुत भयंकर तूफान, बवंडर, जो भी है, जो वेदर है, कि वो भयानक से भयानक वेदर को, है ना, बहुत ही बुरे से बुरे तूफान को झेल जाता है, और वो ज़रा सा भी शेक नहीं करता, मतलब ज़रा सा भी नहीं हिलता है. दैट इज़ लव सरपासेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इट फेसेस. कि जो सच्चा प्रेम है, वो जीवन में चाहे कितनी ही दिक्कतें आए, वो उनको सबको पार कर जाता है और ज़रा सा भी नहीं हिलता है, ज़रा सा भी बदलता नहीं है. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown, although is his height be taken. Now, in the next line, he again Shakespeare uses metaphor, and he says that it is the star. Star, he is referring to pole star, जो ध्रुव तारा होता है आसमान में, जिसको कि एंशंट पीपल यूज जब वो समुद्री यात्राएं करते थे, या वैसे भी लोग लंबी लंबी यात्राएं जब बहुत ही एंशंट समय में किया करते थे, तो वो ध्रुव तारे को देख करके अपनी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उसका अंदाज़ा लगाया करते थे. ध्रुव तारा जो है पोल स्टार, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और वो वहीं पे फिक्स्ड रहता है. इट डज़ नॉट मूव, कि वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. तो उसको देख करके जितने जो यात्रीगण हैं, वो अपनी दिशा का अंदाज़ा लगाया करते थे कि वो किस दिशा में चल रहे हैं. ठीक है, तो हियर द पोएट कंपेयर्स ट्रू लव टू अ पोल स्टार, कि जिस प्रकार पोल स्टार जो है, जो ध्रुव तारा है, वो एकदम फिक्स्ड रहता है, तो वो जो ट्रू लव है, वो पोल स्टार की तरह से, ध्रुव तारे की तरह से हमेशा क्या है, व्याप्त रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी अपनी पोजीशन या कभी भी चेंज नहीं होता है. इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. वॉन्डरिंग बार्क मीन्स हियर इट इज़ द फ्रेज यूज्ड फॉर शिप्स और बोट्स, जो कि समुद्री यात्राएं जब होती हैं, तो बहुत सारे जो शिप्स हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, नाव हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे वॉन्डरिंग बार्क कहा है. वॉन्डरिंग मीन्स मूविंग, जो हमेशा मूव करते रहते हैं. तो उनको रेफ़र करते हुए ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार ध्रुव तारा उनको रास्ता दिखाता था, तो उसी तरह जो सच्चा प्रेम है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है और प्रेमियों को रास्ता दिखाता है. मतलब वो सारी दिक्कतों को अपने प्रेम के द्वारा, क्योंकि हम आपस में वो बहुत प्रेम करते हैं, तो इस कारण से वो क्या है, उसको पार कर जाते हैं सारी दिक्कतों को. Now he says that in the last line of the first stanza, that whose worth's unknown, although his height be taken. कि पोल स्टार जो है, ध्रुव तारा है, उसका वर्थ्स अननोन है. वर्थ मीन्स वैल्यू, कि उसकी जो वैल्यू है उसका अननोन. अननोन मीन्स नहीं पता है किसी को. पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो. इट इज़ इमेजरेबल, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कि भाई व्हाट वैल्यू इट पोजेस, कि उसकी क्या वैल्यू है, वो बेशकीमती है, अनमोल है, क्योंकि इसलिए. ठीक है, तो जिस प्रकार उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी हाइट पता की जा सकती है. ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, कि जो ध्रुव तारा है, कि उसकी हाइट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन वैल्यू वो नहीं पता की जा सकती. वैल्यू एंड हाइट आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो उसकी हाइट का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, वो नहीं नापी जा सकती है. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बिकॉज वो अनमोल है, इसलिए. तो हियर द पोएट कंपेयर्स ट्रू लव
टू लाइक पोल स्टार एंड ही सेज दैट कि जिस प्रकार पोल स्टार का हम वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, वो कितना अनमोल है, उसी प्रकार सच्चा प्रेम जो है वो भी अपनी वो जो है फिक्स्ड रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, और हम उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, वो अनमोल है, ठीक है, उससे ज़्यादा बेशकीमती और कुछ भी नहीं है। हालांकि हम उसकी हाइट हेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव इट मीन्स उसकी जो गहराई है कि कितना प्रेम है, ठीक है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ इस प्रकार का प्रेम है या ऐसा है, लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं नापा जा सकता है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट फोकसेस अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रू लव, दैट ट्रू लव इज़ ऑफ परमानेंट नेचर, और कोई भी दिक्कत आए, कितनी ही रुकावटें आए, उसको पार करते हुए सच्चा प्रेम जो है वो अपनी जगह पर कायम रहता है, ख़त्म कभी भी नहीं होता है। तो द नेक्स्ट स्टैंजा वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।